If Iran closes the Straits of Hormuz, definitely India suffers. India will suffer because oil prices will go up, inflation will rise, India's GDP will suffer by 0.5%. So, right now oil is around 75-80, it may jump to 90, 100, 110. About 1% to 1.5% of India's GDP growth will be shaved off. जो ऑयल की जो शिपिंग है वहाँ से होती है वो प्रभावित होगी और ये जाहिर है कि भारत के लिए भी इसका नकारात्मक प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा. Netanyahu, for him, it has been his life's mission to neutralize Iran. So he is thanking Trump and saying that Trump has done something great for civilization. Yes, what he is saying is also that I have done something great for civilization, which history will remember for generations. It is Netanyahu's legacy that he is building up. Yes, of course, in that journey, he needed the help of Trump, and he has been able to draw in American forces towards his mission of neutralizing Iran. So UN Secretary's statement on this escalation in a region already on the edge and a direct threat to international peace and security. I call member states to de-escalate and to uphold their obligation under the UN Charter and other rules of international law. See, what the UN Secretary General is saying something correct, that there is a danger to humanity, civilization, and so on and so forth. However, the unfortunate fact is that the United Nations is completely toothless. Nobody listens to UN, especially the United States. So the UN and the UN Security Council, they may drop, they may have some meetings, vote for some resolutions which will be vetoed by America. So there is no tangible outcome that the UN can bring about. So last question about the Strait. If Iran closes the Straits of Hormuz, definitely India suffers. About 20% of the world's crude oil and 25% of the world's natural gas flows through these. Qatar's gas, which we buy, almost all flows through this, right? Kuwaiti oil, 70% of Saudi oil comes through the Straits of Hormuz. If that happens, which is expected, India will suffer because oil prices will go up, inflation will rise, and there is an estimate that for every $10 increase in the price of crude oil, India's GDP will suffer by 0.5%. So, right now oil is around 75-80, it may jump to 90, 100, 110. So if it jumps by around $20, $30, it means about 1% to 1.5% of India's GDP growth will be shaved off. देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की गई है और ये अमेरिका के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा हमला किया गया है और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी किसी सीधी मिलिट्री कार्रवाई में उतर सकता है, क्योंकि चाहे वो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या पिछले अन्य अमेरिकी प्रशासन रहे हों, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता लगातार व्यक्त की थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे. और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है. तो ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ये जो बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अपेक्षित थी, इमिनेंट थी और ये जो एक्शन इजराइल ने लिया और उसके बाद अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे जरूर रिस्पॉन्ड करेगा. देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये जो कार्रवाई ईरान के नाभिकीय प्रतिष्ठानों के खिलाफ की गई है, एक मेजर मिलिट्री एक्शन है, एक मेजर एस्केलेशन है जो इजराइल ईरान के बीच का युद्ध चल रहा था और इसका जो आर्थिक प्रभाव है वो भी पूरे विश्व पर पड़ सकता है और इस युद्ध में अब जाहिर है कि एक एस्केलेशन हो गया है और ऐसे में यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ब्लॉक करता है
तो वो जो ऑयल की सप्लाई का एक जो बहुत बड़ा रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पे विश्व की लगभग 1/4 जो ऑयल की जो शिपिंग है वहाँ से होती है, वो प्रभावित होगी। और ये जाहिर है कि भारत के लिए भी इसका नकारात्मक प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा और पूरे विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो इससे डिसरप्टेड होंगी। ऑयल के जो दाम हैं वो उसके ऊपर जाहिर है कि इसका नकारात्मक असर पड़ने जा रहा है। ऑयल के दाम में तेजी आएगी, उछाल आएगा और जो पूरी सिचुएशन है वो आर्थिक रूप से भी पूरे विश्व के लिए अनेक तरीके के नकारात्मक घटनाक्रमों का और चिंता का कारण बनेगी। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।